A very sweet good morning, my dear students of class 10th. Today, I am going to explain your chapter from literature reader. I mean to say prose. Chapter's name is Madam Rides the Bus. This story is translated from Tamil by K.S. Sundaram. In this story, the author described the world from the perspective of a child. From the perception of a child, the world is described by the author. The main character of the story is a 8-year-old girl, Valli. She is 8 years old, but she is very curious girl. She lives near the bus stop of the village. गांव के बस स्टॉप के पास वो रहती है. And most of the time of the day she is standing on her doorway. पूरे दिन अधिकतर टाइम वो अपने दरवाजे पर खड़ी रहती है and observes what is going on the bus stop. She sees each and every activity happens on the bus stop, at the bus stop actually. She gets enjoyed by the activities, but she is more entertained when she sees the passengers boarding on buses. जब वो देखती है कैसे पैसेंजर्स बस पे चढ़ते हैं, हाउ दे टॉक टू ईच अदर, हाउ दे बाय टिकट, हाउ दे start conversation with others. These all the things are observed by Valli. It was her dream to take a journey in the bus. She wants to enjoy like others. She wants to feel how it is in the bus, what type of conversations are there in the bus, what type of things are spoken and discussed by the passengers, which types of activities are performed by the passengers. तो वो देखना चाहती, महसूस करना चाहती है कि कैसे जो पैसेंजर्स बस में बैठे होते हैं वो क्या करते होंगे बस में, कैसे बातें करते होंगे, टिकट खरीदते होंगे, क्या कन्वर्सेशन होती होगी उनकी, क्या उन लोगों की जो मेंटलिटी और थिंकिंग, उनका मूड, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी एक्टिविटीज़, ईच एंड एवरीथिंग शी वांट्स टू, हर चीज़ वो जानना चाहती है. बट देयर इज हर्डल इन हर जर्नी. एक समस्या है उसकी जर्नी में, एक बाधा है. क्या? शी कैन नॉट स्टार्ट हर जर्नी without the absence of her mother. She knows that her mother would not allow her to do any type of journey since she is very young. बहुत यंग है तो उसकी माँ उसको अलाउ नहीं करेगी. She knows that she has to
curtail her expenses, उसे अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, so that she can save enough money for two-way fare, और उसे इतना पैसा बचाना पड़ेगा कि वो दोनों तरफ का किराया दे सके। इसके लिए उसे बहुत सा पैसा अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम करके काट कर उसे पैसा जमा करना पड़ेगा। शी ऑल्सो हैज़ टू मेक द जर्नी ड्यूरिंग द टाइम, कब अपनी जर्नी करना चाहती है? ड्यूरिंग द टाइम व्हेन हर मदर टेक्स आफ्टरनून नैप, जब उसकी माँ दोपहर में झपकी ले रही होगी, जब वो सो रही होगी दोपहर में, तभी वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकती है। While on her journey, Valli does not want anybody's help and wants to feel independent. She has not felt independent in her life so far. She has been under pressure or observation of her mother and other people, but now she wants to be independent. She does not want to be disturbed by anybody, कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे। She enjoys every bit of her journey to the town, and when she collects money, the fare of two ways, दोनों तरफ का, तो वो बस पर चली जाती है और बहुत एंजॉय करती है। टाउन, शी रोम्स इन द टाउन अलॉन्ग विद द बस, बोर्डिंग इन द बस, बस में बैठी हुई वो इधर उधर घूम रही है। शी ऑब्जर्व्स ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द टाउन, सब कुछ ऑब्जर्व करती है। एंड शी फील्स समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, हर चीज़ उसको नई लगती है, बाजार, दुकानें, लोग वहाँ पर। शी गेट्स entertained by those all things, but she is careful enough not to get off the bus in the unknown places of the town. She is very smart. She does not want to take any type of risk to come down from the bus because she doesn't know what the place is, this, that. वो समझती नहीं, जानती नहीं ये कौन सा प्लेस है, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, वो बस से उतरना नहीं चाहती है। ऑन अ रिटर्न जर्नी, सी looks and sees all the scenes, all the things, people, shops, markets, other things, and she is really very, delighted, बहुत खुश है, she is very happy. But unfortunately, she sees a sad accident. She is stunned to see that accident. She is surprised. She is terrified, I would say, frightened to see that bad accident, and that accident of an animal and the condition of the body of the animal on the road spoils her mood. जब वो देखती है उस गाय का या जो जानवर वहाँ पर था, उसकी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था, पड़ी हुई थी वहाँ पर, तो छोटी सी बच्ची थी। She has never seen such type of any incident in life. बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल सीन ये था। दैट सीन इफेक्ट्स हर बैडली, बुरी तरह से सीन ने उसको इफेक्ट किया। दैट सीन स्पॉइल्स हर मूड, उसका मूड खराब हो गया उस सीन को देखकर। एंड शी जस्ट कीप्स टू हर सेल्फ थ्रू आउट द जर्नी, शी वॉज thoughtful. She was thinking about that incident. She was very sad. She was deeply affected to see that bad accident. Her conscience, her inner soul
her kindness, pure heart was badly pricked. बुरी तरह से झकझोर दिया था उस एक्सीडेंट ने उसको. बहुत बहुत सैड हो गई थी, बहुत ज़्यादा. She does not seem to be satisfied with one ride. After completing that ride, she does not seem satisfied. अभी भी वो संतुष्ट नहीं थी. Her lust increases. She again wants to get another chance to start a journey so that the feelings and the complete sense of journey she could get. दोबारा वो जर्नी करना चाहती, दोबारा फ्यूचर में वो वैसी यात्रा करना चाहती थी ताकि उसको जो भी चीज़ें रह गई हैं महसूस नहीं कर पाई है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं तो उसका लालच और बढ़ गया. तो इन फर्दर फ्यूचर शी वांट्स टू टेक अनदर जर्नी. शी इज़ क्वाइट मिस्चीवियस. She is also quite mischievous when she is sure that her mother did not know about her journey. She doesn't want that her mother could know about her journey. She does not want to reveal her journey before her mother. And not only this journey, but the next journey, the further journey she is planning in her mind, she does not want to be revealed before her mother. नहीं चाहती कि उसके माँ के सामने वो जर्नी, उसकी ये की जर्नी जो मैं करके आई हूँ यात्रा, वो बस से या आगे भी मैं यात्रा करूँगी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरी इस जर्नी के बारे में, इस यात्रा के बारे में जाने. तो यहाँ पर स्टोरी को थोड़ी सी शरारती भी महसूस होती है, बिकॉज एट द इनोसेंट एज ऑफ अर्ली एज ऑफ 8 years द चाइल्ड इज़ टू स्मॉल. He or she is not able to take her own or his own decisions. अपने आप वो डिसीजन नहीं ले पाएगा. बट in spite of all these things, इन चीज़ों के बावजूद she is determined to start her second journey in the future. फ्यूचर में वो इस तरह की फिर यात्रा करना चाहती है. एंड अगेन she does not want to tell her mother or let her mother know about her journey that she plans to complete in her future. तो नहीं चाहती है फ्यूचर में भी उसकी माँ जान पाए उसकी इस जर्नी के बारे में. ओके, तो what perception you have created in your mind after reading this story? क्या लगता है आपको, बताइए. The perspective nature of a child is described in this story. A child who is really very curious. Any child, कोई भी बच्चा बहुत क्यूरियस होता है. When he or she sees any aeroplane flying in the sky, क्या सोचता है एक बच्चा, हाँ मैं भी किसी दिन इस एरोप्लेन को चलाऊंगा. अगर वो देखता है कोई गाड़ी चला रहा है तो ही becomes excited and wants to drive the same vehicle due to the curiosity. जो उसकी उत्सुकता होती है उसकी वजह से वो हर चीज़ वो करना चाहता है जो बड़े लोग करते हैं. तो perception of the child emerges to fulfill all those things which are really wild, entertaining. इस तरह की चीज़ें बच्चा करना चाहता है. बल्ली भी इसी तरह की चीज़ें करना चाहती थी. और वो क्या देखती थी सबसे ज़्यादा? मोस्ट ऑफ द टाइम शी वाज स्टैंडिंग ऑन हर डोरवेज एंड ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग हैपेंड एट द बस स्टॉप.
the way of passengers talking, the way of calling the conductor, the passengers. देखा आपने बस स्टॉप पे कहते हैं वो बोलते हैं दिल्ली 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 दिल्ली, इस तरह की चीज़ें सभी लोगों ने जर्नी की हो। बेटा ये लिटरेचर है एक्चुअली, इसको जब तक हम अपनी लाइफ में खुद अपने एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, एक्चुअली जब तक हम अपने जीवन में इसको नहीं उतारेंगे, वैसा ही नहीं सोचेंगे, ठीक है। ये फिक्सन होता है, ड्रामेटिकली वी शुड रीड द फिक्सन और प्रोज स्टोरीज, इसको हमें अपने मन से पढ़ना चाहिए सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फीलिंग ऑफ द स्टोरी, एवरी एक्सप्रेशन ऑफ द स्टोरी। जैसे वल्ली के चेहरे पे आते हैं तो ओह वाओ, हाँ ये देखिए गाड़ी कहाँ जा रही है, हॉर्न बज रहा है इसका, ये पैसेंजर बैठा यहाँ पे देखो फ़ोन पे बात कर रहा है। तो ये द इनोसेंट माइंड ऑफ वल्ली ऑब्जर्व्ड, यूज टू ऑब्जर्व आई वुड से ऑल दोज थिंग्स एंड वांटेड टू लिव द सेम लाइफ। कोई भी बच्चा जब इस तरह की चीज़ें देखता है तो वो ऐसी लाइफ जीने की कोशिश करता है, ऐसी चीज़ें वो इन फ्यूचर he would able to know whether the decision taken by him or her was correct or not, वो सही था, राइट था या रॉन्ग था, वो बाद में उसको पता लगता है। बट परसेप्शन जो बच्चे का दृष्टिकोण जो होता है वो यही होता है कि मैं भी लोगों की तरह, बड़ों की तरह ये सब चीज़ें कर। तो यही एक नज़रिया सोचने का बच्चों का, इस सुंदरम जो ऑथर हैं उन्होंने तमिल से ये स्टोरी फिर ट्रांसलेट करके इस तरह की चीज़ें हम लोगों को बताई हैं इसी स्टोरी के माध्यम से, ठीक है। विद द मीन्स ऑफ दिस स्टोरी वी कुड अंडरस्टैंड द परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन, व्हाट डू दे वांट, व्हाट डू दे ऑब्जर्व, व्हाट डू दे परफॉर्म, क्या करना चाहते हैं, क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं, क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, हाउ डू दे थिंक अबाउट देयर सराउंडिंग्स, कैसा सोचते चारों तरफ अपने उसमें, और कैसा फील करते हैं, और कैसा फिर ऐसे आगे वो करना चाहते हैं। तो उस टाइप ऑफ परसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड इज narrated or described in this story, in the present story, you could know Valli, a small girl, has presented the view of all the children at the young early age। जब वो यंग होते, छोटे होते हैं, उस एज पर क्या उनका दृष्टिकोण होता है, क्या उनकी थिंकिंग होती है, ये सभी इस कहानी में एक बच्ची के माध्यम से बताई गई, ठीक है। मैं बीच बीच में हिंदी इसलिए बोल देता हूँ, एक्चुअली in fact it is not allowed to speak in a single word in English teaching, but I know some students who know both the languages, Hindi and English as well, they could understand the story very well। इसलिए मैं आपको हिंदी में भी बताता हूँ और टोटली आपको इंग्लिश में भी बताता हूँ, क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो दे आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश टू स्पीक और अंडरस्टैंड इट, मीन्स दे ऑल्सो कुड नो अबाउट द स्टोरी। ओके, थैंक्स, दैट्स ऑल। Now I would like to request you all, my dear students, to note down all the question answers of this story in your notebook of English. I would send them to you on your group, and you are supposed to complete the work, and after completing the work you are supposed to get a pic of that work and send it to me on my own WhatsApp number so that I could check your work। ओके, वर्क मेहनत करते रहिए बेटा। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं कंप्लीट रखिए, और जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु आर नॉट टेकिंग लाइव क्लासेस, दे आर योर क्लासमेट, यू आर सपोज टू मेक देम अवेयर अबाउट टेकिंग लाइव क्लासेस, अदरवाइज दे आर गोइंग टू पे ह्यूज फॉर देयर नेग्लिजेंस। ओके।
Thank you. Have a nice day. God bless you.